previous 5-year question, you will realize that there are some core areas and those are unchanging. Core areas in every subject, right? I found one student, next 3-4 days में, like he dedicated, time and prepared list, like analysis of, all history questions of past 10 years. I suggested only 5 years. History के टीचर से बात करो तो वो बताएगा कि हिस्ट्री के बिना पीटी होगा ही नहीं. इकोनॉमी वाले से बात करो वो बताएगा कि बिना इकोनॉमी के तो हो ही नहीं सकता. ज्योग्राफी वाले से बात करो तो उनका अपना राइट. इन सब में ना उलझ के आप डायरेक्टली ही क्यों ना सिलेबस से बात कर लो. वे कहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री कितने दिन में कंप्लीट करता है कोचिंग? 6 to 7 days में. जबकि इतना इंपॉर्टेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से टू ऐड वैल्यू इन एवरी सब्जेक्ट. टू ऐड वैल्यू इन एवरी सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट में यू कैन ऐड वैल्यू थ्रू पोस्ट इंडिपेंडेंट historical knowledge. Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash Sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan Sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan Sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. Yesterday also after the class, in course of discussion with few students, I realized that still you have a little confusion regarding, how to move ahead. In this class, there are repeaters, those who are repeating attempts, right? और एंड बिगनर्स भी हैं जो नेक्स्ट ईयर 25 को टारगेट कर रहे हैं, है ना? कई लोग हैं 25 के लिए. तो जस्ट लाइक ओरिएंटेशन में ऑल्सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ माई सेल्फ एंड आइडेंटिटी, माई पर्सनैलिटी. फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू बी ट्रू टू सिलेबस. You have to be true to syllabus. Genuine orientation towards syllabus. Yes, na? Getting a point. Don't be blind to the personality of others, particularly those who have competed ahead of you, the toppers, right? उस पर blind नहीं हुई है, ठीक है ना? सिलेबस के ऊपर वो टॉपर अगर बने हैं तो सिलेबस, being true to the सिलेबस. सिलेबस में टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स है. यस ना? अभी मैंने इवनिंग बैच में एक दिन प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया एंड सजेस्ट किया कि यू प्लीज़ एनालाइज प्रीवियस 5-year क्वेश्चन. यू विल रियलाइज कि देयर आर सम कोर एरियाज एंड दोज आर अनचेंजिंग. कोर एरियाज इन एवरी सब्जेक्ट, राइट? लाइक lakes, rivers in geography. Every year you will find question related to lakes, river system. Yes or no? Getting your point. Literature, history में तो you can find core areas, key areas. You can understand core areas with the help of keywords. Keywords के through, है ना? Question देखा, keywords को mark किया, keywords का listing कर दिया. Yes ना? Right. You will understand कि अच्छा these are core areas and some peripherals जो कि कभी कभार रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी थिंग्स एंड ऑल, एंड सम सेमी पेरिफेरल जो कई बार रिलेटेड टू द कोर, है ना? जो डायरेक्ट सिलेबस से नहीं होता. सेमी पेरिफेरल एरियाज जो डायरेक्टली सिलेबस में जो मैंने पढ़ा है वो नहीं है, है ना? पेरिफेरल इज करंट फ्लूइड टॉपिक्स. यस ना? कोर इज परमानेंट टॉपिक, पेरिफेरल इज फ्लूइड टॉपिक जो हर साल चेंज हो जाता, एंड सेमी पेरिफेरल which are not directly related to the syllabus but based on core areas of the syllabus related to contemporary development. Yes ना? तो थोड़ा इस like government programs, policies, ये सब direct syllabus में नहीं होता है ना? Getting your point. But questions are related to government programs, policies, interventions. Yes or no? तो इसको analyze करके you have to move ahead. Knowledge building करना है. Yes or no? Knowledge matrix develop करना है. कहाँ बहुत ज़्यादा इसमें मतलब प्रॉब्लम है? अब मैंने डिस्कस किया
I found one student, next 3-4 days में, like he, मतलब dedicated, time and prepared list, like analysis of, all history questions of past 10 years. I suggested only 5 years. So here, subject history in one column, second question, PYQs, and third column, keywords. And on that basis, last column में key areas to focus, subject wise, key areas to. Ab he did himself, so he became, more aware about, UPSC का pattern, trend, first hand, awareness. वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, हर कोई अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. गेटिंग अ पॉइंट और नॉट. हिस्ट्री के टीचर से बात करो तो वो बताएगा कि हिस्ट्री के बिना पीटी होगा ही नहीं. इकोनॉमी वाले से बात करो, वो बताएगा कि बिना इकोनॉमी के तो हो ही नहीं सकता. ज्योग्राफी वाले से बात करो तो उनका अपना राइट ऑब्जर्वेशंस एंड अपना रिजर्वेशंस. यस ना, गेटिंग अ पॉइंट. तो इन सब में ना उलझ के आप डायरेक्टली ही क्यों ना सिलेबस से बात कर लो, आप डायरेक्ट बात कर लो. सो डायरेक्टली इंटरैक्ट, कन्वर्स विथ सिलेबस. थोड़ा कन्वर्स करिए सिलेबस के साथ, है ना. जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हैं थोड़ा कूल रहिए, बहुत एंग्सियस नहीं. जीएस में भी, जीएस में कोचिंग चल रहा है, वहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल टीचर्स हैं, सबके ऊपर एक टाइम बाउंड मैनर में फिनिश करने का प्रेशर भी रहता है. मेरे जैसा फ्रीडम नहीं रहता है ना, क्योंकि यहाँ मुझे किसी को अकाउंटेबल नहीं होना है कि हाँ 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर देना है. यस ना, राइट. तो प्रॉब्लम हो जाता है उसमें. अब ये कहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री कितने दिन में कंप्लीट करता है कोचिंग? 6 to 7 डेज में. जबकि इतना इंपॉर्टेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू ऐड वैल्यू इन एवरी सब्जेक्ट, टू ऐड वैल्यू इन एवरी सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट में यू कैन ऐड वैल्यू थ्रू पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल नॉलेज. यस ना. अब उसका डिस्कशन होना चाहिए 1 मंथ तक, थोड़ा डिटेल डिस्कशन. इकोनॉमिक हिस्ट्री, है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स. यस ना, इन्वायरमेंटल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस. हमने भाई न्यू एक्शन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्ट किया, तो वो हमारे हिस्ट्री का ही पार्ट है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री दैट वी हैव स्क्रिप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. यस और नो, जो हमारा डेवलपमेंटल पाथ है. तो अब कोचिंग के प्रायोरिटी में 6 डे है, लेकिन यू शुड डेडिकेट सम मोर टाइम टू राइट गुड एसे ऑल्सो. अच्छा एसे लिखने के लिए भी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. यस ना. सो कन्वर्स विथ सिलेबस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू PYQs, है ना. PYQ से आप सिलेबस से ही तो कन्वर्स करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, है ना, राइट. तो ठीक है, अपना भी मतलब एक ट्राई टू बी योर ओन गाइड, है ना. अपना भी अपने को गाइड करिए, अपना मेंटरशिप करिए, है ना, राइट. ठीक है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट होगा तो थोड़ा एक्सटर्नलिटीज़ से हमें फ्री भी होना है, एक्सटर्नल थिंग से फ्री होना है, ताकि मैं घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकूं, गाइड कर सकूं, अपने को मेंटोर कर सकूं. घर पे अच्छा खाना भी मिलता है. यस ना, राइट. एनीवेज